ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، ذمہ داران سے ملاقات ہوئی، اس میں مستقبل میں اس کام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی آگاہی حاصل ہے۔ کشمیر میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماشاء اللہ پورے کشمیر میں ہمارا تنظیمی سیٹ اپ موجود ہے۔ فی الحال اس پر وہاں پر ہمارے 3 زون کام کر رہے ہیں، ایک میرپور زون ہے، ایک راولپور زون ہے اور ایک ہمارا مظفر آباد زون ہے۔ اور اسی طرح ان تمام زونوں کے نیچے ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، 10 ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر، اور پھر ڈسٹرکٹ سے نیچے کا اسی لیول تک کا ہمارا تنظیمی سیٹ اپ وہاں پر موجود ہے۔ یقیناً وہاں پر مسائل بے شمار ہیں، مسائل بہت ہیں، کارکنوں کو کام کرنے میں بہت دشواریاں ہیں، لیکن ان کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ ماشاء اللہ قائد تحریک کے فکر و فلسفے کو وہ عام لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اور ہمیں قوی امید ہے کہ کشمیر میں ایک دن الطاف بھائی کا پیغام اسی طرح ایک شخص تک پہنچے گا کہ جس طرح کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقوں اور ملک کے دیگر علاقوں میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے اور یہ پیغام پھیل رہا ہے۔ کشمیر میں ہمیں ظاہر ہے 2005 میں جو اتنی بڑی تباہی ہے اس حوالے سے خدمت خلق فاؤنڈیشن کو ہمارے کارکنان کو کام کرنے کا موقع ملا۔ قائد تحریک وہ پہلے شخص تھے اس وقت کہ جب یہ زلزلہ آیا تو انہوں نے اپنی بصیرت سے اندازہ لگا لیا تھا کہ تباہی کس پیمانے پر ہے، تو اسی دن شام کو کشمیر ٹیمیں روانہ کر دی گئی تھی اور لوگ کارکنان کو کہا تھا کہ وہ فوری طور پر کشمیر کی طرف روانہ ہو جائیں، لوگوں کو مدد کریں، امدادی کارروائیوں میں حصہ لیں، خاص طور پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈک اسٹاف جو پہلا گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ آگے بڑھ کر ان امدادی سرگرمیوں میں ساتھ دیں۔ تو ہمیں جب وہاں کام کرنے کا موقع ملا اور لوگوں نے پہلی دفعہ متحدہ گورنمنٹ کو اس انداز میں کام کرتے ہوئے وہاں پر دیکھا کہ یقیناً اس کا بہت اچھا تاثر ہے، بہت اچھا گہرا اثر ہے، کیونکہ جب کسی کی آپ مدد اس وقت کریں گے جب اس سے مدد کی حقیقی ضرورت ہو تو ساری عمر وہ اس بات کو یاد رکھتا ہے۔ تو کشمیر میں جب ہم کام کرتے ہیں تو آپ ہمیں اس حوالے سے بھی بہت سپورٹ ملتی ہے کہ کیونکہ لوگوں نے قائد تحریک کی تعلیمات پر عملی طور پر عمل کرتے ہوئے کارکنان کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ کئی دن ان کے ساتھ رہے اور کئی دن تک بغیر کسی وقفے کے وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگ ہم سے وہاں پر بات کرتے ہیں، لیکن میں کشمیر کے تمام لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اگر ہماری اچھائیوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً اس بات کو ضرور محسوس کریں کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو کچھ بھی امدادی کارروائیاں ہوئیں یہ کس فکر اور فلسفے کے تحت ہوئی، اس ویژن کے پیچھے کون شخص ہے، اور اگر MQ کے کارکنان میں یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے تو پھر کشمیر میں رہنے والوں میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اگر قائد تحریک کی باتوں پر بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنے حقوق کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں تو اس سے زیادہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آج اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کشمیر میں جو ہم تنظیم سازی ہماری ہو چکی ہے اس کو ہم اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ جو لوگ متحدہ گورنمنٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمارے زون آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں پر ڈسٹرکٹ میں ہمارے لوگ موجود ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر جلدی خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت ایک ایمبولینس سروس شروع کی جائے، اور اس کے لیے بھی ہم نے وہاں پہ جگہ دیکھی اور اس کو بھی انشاءاللہ واپس جانے کے بعد ہم فائنلائز کریں گے۔ تو آپ صحافیوں بھائیوں بھی ہمیں اس میں مدد کی ضرورت ہوگی کہ جہاں تک MQ کے خلاف جب منفی پروپیگنڈا کیا گیا تو اس کو ظاہر کرنا اور ہماری مثبت باتوں کو آگے پہنچانا بھی اب صحافی بھائیوں کو ان کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ جہاں پر بھی متحدہ گورنمنٹ مضبوط ہوئی ہے وہاں کے لوگوں کو براہ راست اس کا فائدہ پہنچا ہے، اور جو کچھ بھی متحدہ گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے کیا جاتا ہے وہ کسی ذاتی مقصد کے لیے یا کسی خاص پارٹی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ وہاں کے رہنے والے ایک فرد کے لیے ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے لوگوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ جب متحدہ گورنمنٹ فاؤنڈیشن اپنی جو وہاں پر عمل میں لایا
इस पे भी वो हमारे साथ ताउन करें कि ये एक मुतहदा कौम जो एक तंजीम है उसके पीछे कुछ सरमाएदार वडेरे और जागीरदार नहीं, ज़ाहिर है माली वसाइल है, माली वसाइल की कमी है। इस सिलसिले में भी वो जो कुछ भी कर सकते हैं अपने लोगों के मुतहदा कौम के साथ मिलकर। मैं इसके साथ साथ तमाम कारकुनान से भी वो आज़ाद कश्मीर में हों या मुल्क के दीगर शहरों में हों, उनसे भी अपील करूँगा कि मुहर्रम का ये महीना है, इसमें हम जो कुछ भी करते हैं वो हम उसी तरह कर रहे हैं। कुछ लोग हमें अपने मस्बत कामों से रोकने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, तो वो उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दें। कि उस तरह की कुव्वतें हमेशा से हमारे खिलाफ असर तहकार रही हैं, वो हमेशा इस तरह करती रहेंगी कि हमारे कामों को रोका जाए, ताकि आम लोगों को जो कुछ भी हमसे मिल रहा है वो ना मिले और हमारे कामों को मुतासर किया जाए। तो हमें इन साजिशों का हिस्सा नहीं बनना और अपने काम से काम रखना है। और मुहर्रम हराम के हवाले से जो भी काम किया जा रहा है, जो भी कायदे तहरीक की तालीमात की रोशनी में हम करते रहें, इस काम को आगे बढ़ाना है। इंशाअल्लाह ताला इन साजिशों में निकल आएंगे और अपने मकसद में कामयाब होंगे। आप तमाम साथी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस हवाले से किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इजाज़ अब्बासी साहब सदाए चुनाव के एडिटर हैं। जी कोई मेहरबानी, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर में MQM के हवाले से ये बिल्कुल एक पुख्ता तासर है कि मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है और काम भी अच्छा कर रही है और इसके शबरोज भी अच्छे हैं, क्यादत भी अच्छी है। लेकिन बाज़ ताज़ात हैं, परसेप्शन कायम कर रखी है लोगों ने, मीडिया भी आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करता है, तो उसमें लोगों का रास्ता रुक जाता है। तो आप बताएं, आपके पास कौन सा कोई है मैकेनिज़्म है जिससे लोगों के जहन में इस तरह के जो आए रोज ताज़ात पैदा होते हैं इनको दूर किया जाए, ताकि लोग जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं वो आ सकें? बुनियादी तौर पर जैसे आपने खुद कहा कि परसेप्शन है, और जब कोई परसेप्शन किसी के बारे में कायम हो जाता है या कायम किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई वजह भी होती है। लोगों को जिनके जहनों में ऐसे सवालात MQM के हवाले से हैं तो उन्हें भी चाहिए कि वो एक कदम आगे बढ़ें कि आप लोग मुत्तहदा कौम मूवमेंट पूरे मुल्क के हर गली कुचे में मौजूद है। यकीनन कश्मीर में अगर लोगों के जहनों में ऐसे सवालात हैं तो कश्मीर में हमारे मकामी क़यादत मौजूद है। और फिर मैंने जैसे पहले कहा कि कश्मीर में हमें दो बड़े एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि 2005 में अमली तौर पर वो देख चुके हैं कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट है क्या। दूसरी बात ये कि यहाँ पर तालीम का तनासुब खासा बुलंद है मुल्क के दीगर इलाकों में। इसी तरह यहाँ पर वो गिरफ्त बड़ेदार निज़ाम की नहीं है तो दीगर जगहों पे है। तो परसेप्शन अगर है तो ये हमारा भी फर्ज है कि हम आगे बढ़ें। और ये जो एक ज़माने में मनफी प्रोपेगेंडे किए गए खासतौर पर 1992 के ऑपरेशन के बाद, और बहुत सारी बातें की हैं जिनापुर का नक्शा और करना। दूसरी बात है तो आप लोगों ने खुद देख लिया कि वो लोग उस वक्त मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियों पे थे कि जिस ज़माने में ये तमाम बातें प्रोपेगेंड की गई तो उन लोगों ने खुद अल्लाह के फज़ल व करम से आकर इन तमाम चीज़ों की तरदीद की। तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद किसी चीज़ की गुंजाइश रह जाती है। अगर कोई किसी के जहन में MQM के खिलाफ कोई हासिल है और उसने MQM के खिलाफ काम करना है, लेकिन लॉबी तो हमेशा इसी तरह मनफी प्रोपेगेंडा करती रहेगी। तो मेरी तमाम तशकीली भाइयों से अपील है कि वो आगे बढ़कर वहाँ पर जो हमारे मकामी लोग हैं उनसे मुलाकात करें और जब उनका कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर इलाकों में जाना हो, आपको कराची में जो हमारा 9 है वहाँ पर विजिट करें, वहाँ लोगों से देखें, वहाँ हमसे बात ना करें बल्कि कराची के रहने वाले, हैदराबाद के रहने वाले आम लोगों से बात करें, आम ताजिरों से बात करें, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कौन उनका दोस्त है और कौन उन्हें परेशान है। कैसा मेरा ये सवाल है कि आज़ाद कश्मीर में अभी जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू होने वाली है। अजीज मलिक साहब ये प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और एक कायनात के लिए जी ये चूँकि आप जिस तरह पीपल पार्टी में अभी बैरिस्टर सुल्तान साहब शरीफ हुए तो इस तरह की आप वहाँ इत्तेहादी इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, पाकिस्तान में आप पीपल पार्टी के साथ हैं, तो आपने कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि आपने या वहाँ मकामी हालात देकर आपने फैसला करना है? दूसरा मेरा क्वेश्चन सर ये है कि थोड़ा सा सवाल उन्होंने किया है कि परसेप्शन है, क्योंकि कराची ऐसा शहर है जो पठानों, माजरू, कश्मीरी हर पूरी तमाम कौमियतों का मरकज़ था। वो फुटपाथ में भी सोगा जो है वो रात को सोते थे, वो पीसफुल शहर था। तो परसेप्शन ये है जो कि प्रोपेगेंडा जिसको आप कह रहे हैं कि वहाँ पत्ता
सिस्टम जो है वो बहुत अरूज पे है। उसमें रात को भी एक ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का क्वेश्चन है, तो मैं इस पर चाहता हूँ कि आप ज़रा खुल के, आप बहुत उम्दार अहदे पे हैं, तो ज़रा मीडिया को ब्रीफ भी करें, और मीडिया वालों कश्मीरी जर्नलिस्ट को मेरी तजवीज़ है कि हमें तो वहाँ आप ब्रीफिंग वहाँ दें और मौके पे कुछ चीज़ें जो है हमें एनालाइज करें। इसमें फिर मतलब मैं यकीनन आपकी बात आगे बढ़ाते हुए तो ये कि ये बात अच्छा कि आपने याद दिला दी, हमारे जहन में थी कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और हमारी जो दायद को करवाई इनसे भी गुजारिश है कि वो इस चीज़ को भी देखेंगे। एक डेलीगेशन कश्मीर का हो, कश्मीरी साफ़ियों का, जिनको कराची का विज़िट कराया गया, और इंशाल्लाह इसको हतमी शक्ल देंगे जल्दी। तो फिर एक तो ये कि आपका विज़िट कराची का हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें बज़ाते खुद आप देख लेंगे कि ये जो भत्ता लेने के वाक़यात हैं, ये जो दीगर जराइम की वारदात हैं, इंतहाई उरूज पे जो पहुँचती चल जा रही है कराची में जराइम की वारदात, उनकी वजूहत क्या है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है जब सीइंग इज बिलीविंग, अगर आप लोग वहाँ पर आएंगे तो फिर खुद आप देख लीजिएगा। क्योंकि अभी जो मैं बात आपसे कहूँगा वो सिर्फ एक बात होगी, लेकिन आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये फ़र्क महसूस होगा कि ये कौन से मखसूस इलाके हैं, कौन सा मखसूस एलिमेंट है, और ये और उन ताजिरों से ज़रूर मिलिएगा, उन सनतकारों से ज़रूर मिलिएगा कि जिनके साथ, उन दुकानदारों से ज़रूर मिलिएगा कि जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो वो आपको बताएंगे कि कुछ भत्ता माफिया के हवाले से कुछ इलाके कराची में बात मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी वज़ीर दाखिला साहब ने कहा, तो वो उनकी गैर जिम्मेदाराना बयान तो अक्सर आते रहते हैं, और वो इसी तरह की बातें करते रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये कोई एलिमेंट है कि अभी जो हमारे अच्छे कामों को सबोताश करने की कोशिश करता है। तो इस मसले पर हम चूँकि मुहर्रमुल हराम में इस बहस में उलझना नहीं चाहते, और वो मेरा ख्याल है मकसद भी शायद यही है कि हम इस बहस में उलझ के अपने उन फलाही कामों से दूर हो जाएँ जो हम इस मुहर्रमुल हराम में करते हैं। तो इस 10 मुहर्रम के बाद हमारा एक डेलीगेशन सदर और वज़ीर आज़म साहब से मिलेगा, और जो कुछ भी कहा गया उस बयान में, और उसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात हम उन तक पहुँचाएँगे। ये सदर और वज़ीर आज़म साहब का काम है, और हमारी उनसे अपील भी है कि उस तरह के एलिमेंट को ज़रा से लगाम दें, क्योंकि ये शहर क्या है, ये मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश है, और हम इस मामले में अभी मज़ीद बहस में उलझ के और अपने जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं उसको मुतासर नहीं होने देंगे। 10 मुहर्रम के बाद इस मसले को देखेंगे। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है परसेप्शन के हवाले से, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि आप कश्मीर में तो MQ को आपने देख लिया, अब आप सिर्फ प्रोपेगेंडा देंगे, तो आप इंशाल्लाह कराची में भी आकर MQ का काम देखिए, और आपको देख लें, और उन जगहों पर फिर ज़रूर खुद जाकर विजिट कीजिएगा जहाँ से इस तरह की इत्तलात आपको